जो ये आज एआई का इवेंट हुआ है, एआई एंड ड्रोन एक्सपो हुआ है सीजीसी लांड्रा के अंदर, and TiE Chandigarh has been presenting here. Lot of learnings will happen to the kids from the various panels. It will be very helpful for the startups and for the next generation. These 2 days expo as well as the symposium as well as the conferences, it is a landmark in the history of CGC Landra. ऐसा एक्सपो, इसमें पार्टिसिपेटिव लर्निंग भी होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होगा, लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह डेवलप होगा. सो मेनी लेजेंड्स, एमिनेंट पर्सनैलिटीज as well as the celebrities इस फील्ड में उनके साथ इंटरेक्शन भी होगा. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ. Today we had 11 startups which we shortlisted from a number of startups who showcased their inventions in front of Chak, Ashneed Rover, and then Dr. Zaveri. I am extremely warmed and humbled with the love and affection that we have received over here in Punjab. It is my first time. I am truly delighted, and so much so that I hope I can return very soon. एआई का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा है. जो सबसे बड़ी कॉमन मिथ है कि एआई जो है लोगों की नौकरी लेगा, नहीं. एआई से और ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी. हमें चीज़ों को काम करने में आसानी होगी और साथ ही साथ जो है हमें बहुत सारे वर्टिकल पे कॉस्ट और समय की बचत होगी. जितने जो यंग स्टूडेंट हैं, यंग इनोवेटर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा ये. ऐसा एक्सपोज हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को एंड इवन फॉर द सोसाइटी इन फ्यूचर. जो ये आज एआई का इवेंट हुआ है, एआई एंड ड्रोन एक्सपो हुआ है सीजीसी लांड्रा के अंदर, एंड TiE Chandigarh has been presenting here, and I personally has been, I think, find it very learnable, and lot of learnings will happen to the kids from the various panels and from the various discussions. So that will come out of this. It will be very helpful for the startups and for the next generations. AI is not something that we can actually get away from. We can't get rid of that. And the participation from the academia, industry, as well as from the government has been very instrumental here. Also, I was just part of the panel, so where all these bodies were present, and there was a lot of fruitful discussion that has happened on it. ये एक्सपो नॉर्थ इंडिया में पहली बार हो रहा है और सीजीसी का भी एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है उनके लिए भी. लेकिन आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? So I'm a part of a body. I'm a president of TiE Chandigarh. जी. So the goal of us is to fostering entrepreneurship in the startups. So it is completely in line with what we are actually trying to do. All the technology startups, so that will come up, that will grow from here, is something helping us also. क्या लगता है फ्यूचर में क्या फ्यूचर है इसका एआई का? सर, एआई से आप भाग नहीं सकते. जी. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँ, एआई के साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा, और जो सीख जाएगा उसके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर आपने जीना नहीं सीखा तो वो सबसे बड़ा रिस्क है. This especially the expo, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज द ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये तो कंट्री का फ्यूचर है. इवन ग्लोबल लेवल पे ही ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है. CGC Landra always takes the initiatives for the next 25 to 30 years, keeping the education sector as well as the future of the students and the country at par with the market, as well as CGC Landra is going to excel in academics as well as co-curricular activities as well as the extracurricular activities also, as per the vision of the honorable management. Okay. The evidence of such going to the excellence is through such expos. These 2 days expo as well as the what you call a symposium as well as the conferences, it is a landmark in the history of CGC Landra. सर, सीजीसी लांड्रा में ये एक्सपो पहली बार करवाया जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में पहली बार करवाया जा रहा है, और इसके बारे में कैसे सोचा गया, कैसे प्लान बना
और इस इवेंट के बारे में कैसे सारा ऑर्गेनाइज किया गया? हमारा मोदी जी का भी इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। जी इवन जो भी हमारा जॉब रिक्वायरमेंट है जी। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट भी होना, इवन एंटरप्रेन्योर्स भी होना के विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। इसीलिए मोदी जी का गवर्नमेंट भी के वेरियस वेज पे स्टार्टअप्स को सपोर्ट तो दे ही रहे हैं थ्रू वेरियस स्कीम्स। सीजीसी लैंड्रा भी ACIC राइस के थ्रू, हमारा इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू के, इवन अदरवाइज हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू के स्टार्टअप्स को सपोर्ट तो दे ही रहे हैं, फ्यूचर में भी दे देंगे। सीजीसी लांड्रा का मकसद क्या था ये एक्सपो करवाने का, और जो यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं और जो आपको देख रहे हैं इस माध्यम से, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सीजीसी लैंड्रा बच्चों का हित में ऑलवेज सोचना इनका विजन है। जी बच्चों का विलिंगनेस है एडमिशन लेने के बाद इधर अच्छा कॉर्पोरेट्स में जाना या हायर स्टडीज़ पे अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना या खुद का कंपनी खोलना, जी एक स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स बनना, और इवन अदरवाइज डिफेंस सर्विसेज में जाना या गवर्नमेंट सर्विसेज में। सीजीसी लैंड्रा किसी भी एरिया या कैटेगरी में बच्चों को ट्रेनिंग गाइडेंस, ओके, सीजीसी लैंड्रा बिलीव करते हैं इन स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स लर्निंग में। जी ये वाइट बोर्ड टीचिंग, ब्लैक बोर्ड टीचिंग सीमित नहीं है कि इसके ऊपर जो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, पार्टिसिपेटिव लर्निंग, इवन द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, ओके, ये टोटल कॉम्बिनेशन है सीजीसी लैंड्रा। ओके, ऐसा एक्सपो, जी इसमें पार्टिसिपेटिव लर्निंग भी होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह डेवलप होगा, as well as so many legends, eminent personalities, as well as the celebrities इस फील्ड में उनके साथ इंटरेक्शन भी होगा। ये एक जैसा टार्च बेरर्स है सीजीसी लैंड्रा के, ऐसा एक्सपोज हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को एंड इवन फॉर द सोसाइटी इन फ्यूचर। My name is Suryakant. I am Program Director with the Ministry of Electronics and IT Startup Hub. सीजीसी में पहली बार ये एक्सपो करवाया गया, नॉर्थ इंडिया का ये पहला एक्सपो है, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ये बहुत बेहतरीन है बिकॉज खास करके हम AI और ड्रोन की जब बात करते हैं तो ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है और जिसके साथ ये बिल्कुल अलाइन है। और आपके चेयरमैन संधू साहब ने जैसा शुरू में ही बोला कि अभी एक समय की ज़रूरत है, और समय की ज़रूरत को देखते हुए खास करके इंडिया की इस नदन पार्ट में इस तरह का इनिशिएटिव ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जितने जो यंग स्टूडेंट हैं, यंग इनोवेटर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो गया है। ड्रोन की जो टेक्निक है, लगता है भारत को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकर के जाएगा, और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के साथ साथ जैसे CGC जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इनके बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं आपके यहाँ, इन सब लोगों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। हम रिसेंटली में देख रहे हैं कि इन लोगों की सपोर्ट की वजह से ड्रोन दीदी जैसा प्रोग्राम, ड्रोन किसान जैसा प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। जी, AI का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा है, और एक जो सबसे बड़ी कॉमन मिथ है कि AI जो है लोगों की नौकरी लेगा, नहीं, AI से और ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, हमें चीज़ों को काम करने में आसानी होगी, और साथ ही साथ जो है हमें बहुत सारे वर्टिकल पे कॉस्ट और समय की बचत होगी। Thank you very much. It's truly a pleasure to be over here at the Chandigarh Group of Colleges. I am Dr. Arshi Ayub Muhammad, and I represent the Trustwood Trade Group of Companies and also His Highness Royal Office in UAE. It's truly a warm pleasure to be hosted over here, and there is so much of affection and knowledge that we have received over here today at the Bharat AI and Drone Expo. So I am extremely delighted. Thank you. So ma'am, as you are from Dubai, so how impactful is AI for a country? Is it a useful thing or a harmful for a country? On the country basis only.
Most definitely, since we are at an inflection point today where technologies are becoming more and more sophisticated and transformative, specifically, the ethical usage and usage for technology for augmentation of the humankind is essential. And we must ensure that cognizance is paid, heed is paid, and enough attention and regulation is there in order to ensure ethical frameworks for execution of technology, because some of these are extremely transformative and beneficial for us as a civilization. So, ma'am, what's the future of AI according to you? Artificial intelligence is definitely an enabler, and it can develop a very sound technology ecosystem across the world. Artificial intelligence can pathway the entire technology and science invention. In fact, the UAE Vision 2031 has a very specific charter for the augmentation of AI practices in industry, in the nation, in governance practices, and also most individuals in UAE enterprise believe that AI can be a massive enabler for augmentation of the ecosystem. So definitely technology and its safe ethical usage is here to stay, and we must implore more and more individuals to learn about it. Thank you. So, ma'am, how your experience of the Punjab, Chandigarh area? I think this is your first visit to the Punjab. It is incredible. I am extremely warmed and humbled with the love and affection that we have received over here in Punjab. It is my first time, and extremely warm. I'm truly delighted, and so much so that I hope I can return very soon. My name is Chavi. I'm looking after placements, corporate resource center, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡੀਕੇਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਕਸਡਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਦਾ। ਐਕਸਪੋ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਜੀਸੀ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਈਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ और एक सक्सेसफुल सिटीजन बन। Hi, my name is Dr. Ruchi Singla and I am working as Director Research and Innovation with the Chandigarh Group of Colleges, LANDRA. We have this incubation center, and the name of the incubation center is ACIC Rise Association. So this is funded by Niti Aayog, Startup India Seed Fund, and Startup Punjab is one of the collaborating partners. ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ that is AI and Drone Expo, that is on today, that is September 20th, and tomorrow we have Innovation and IP Conclave. Today we had 11 startups which we shortlisted from a number of startups to who showcase their inventions in front of Shark, Ashneer Grover. And then Dr. Zaveri, she is CEO of Trust Group and a senior advisor to the royal family of Sheikhs Dubai. She is here to judge the startups, to check the pitch of the startups. It has been a wonderful event so far, and right now we have the panel discussion going on in the campus in the Pandal. ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ?
हाँ जी ज़रूर बिकॉज डीप टेक स्टार्टअप्स जिन्ने भी अपने फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ if we see we have lot of deep tech startups coming up and drone technology and AI are the future. If you see I'm talking about my incubation center which is ACIC Rise Association. We have about 80 startups out of which I can say 30 startups are the deep tech startups and they are the future of India. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਜੀਸੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਸੀ? I can tell you that from last 23-24 days, some of the startups, they have been working consistently on their prototypes ਜੀ so that they can prepare the prototype, because tomorrow we have this IP conclave where we will be showcasing the products of technology readiness level above 4. Startups, they were here since morning 7 o'clock just to meet Ashneer Grover. And there was a lot of excitement amongst the students, specifically amongst the startups for this. Yeah. AI ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? Artificial intelligence is the future if used in a correct way. And recently we have launched the Artificial Intelligence Lab, and we will be working on AI in agriculture and AI in healthcare. And hopefully we are getting good projects for that. तो मेरा नाम लवलेश दत्त है, मैं कैथल से हूँ, हरियाणा से हूँ, और मेरा स्टार्टअप है DD यूनिवर्स। उसमें हम सोशल इनोवेशन एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं और कैसे हम सोशल इकोसिस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने वुमेन सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर। अभी रिसेंटली भी आपने देखा है इतने वुमेन सेफ्टी को लेकर केसेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम खुद को सेव कर सकते हैं, रेदर देन कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं मेरे घर वालों को कॉल करूँ या मैं किसी भाई को कॉल करूँ, वो आएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो सर उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रक्षक बनाया है। रक्षक क्या है, आप अपने पर्स में अपनी पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हो। 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, 2 महीने तक चलता है, 2-3 महीने तक। तो कोई भी आपको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, आप कहीं पे उसको टच कर दोगे तो उनको झटका देता है, और ये झटका नो लीथल है। नो लीथल यानी कि इससे जान नहीं जाती, बट एट ए टाइम आप खुद को सेव कर सकते हो। तो आप सीजीसी में पढ़े हैं? सर यहाँ पे मैं इंक्यूबेटेड हूँ, बाकी मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई है। एंड मेरे को करमवीर चक्र अवार्ड एंड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से ऑनर्ड हूँ मैं। सोशल इनोवेशन के अंडर मैंने काम किया सब चीज़ों के लिए। कंपनी हमारी DD यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्टार्टअप की है सर। तो ख्याल कैसे है आपको इसका? सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वुमेन फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था इसके बारे में कि वुमेन सेफ्टी को लेकर के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती है। पॉलिटिकल एंड से चीज़ें सर अलग एंड से रूल्स एंड रेगुलेशन, बट हम पर्सनल एंड से हर चीज़ स्मार्टफोन को कैरी करते हैं आज के टाइम में, एसेसरीज को कैरी करते हैं। तो ये मैं चाहता था कि एक टेक्नोलॉजी बनाए जो हमारी रक्षा करे, सेफ्टी करे टाइम, इसलिए फिर मैंने रक्षक को बनाया। पूरा इसका नाम है हमारा रक्षक वैसे, एंड इस ऑब्जेक्टिव से इसको मैंने बनाया था। नॉर्थ इंडिया में पहली बार एक्सपो करवाया गया है सीजीसी में, आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं। राइट सर। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, इंक्यूबेटेड हूँ मैं यहाँ पे, यहीं पे मेरा ऑफिस है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ खुशी होती है कि प्रैक्टिकल लेवल पे भी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे हो रही हैं। एंड मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि आप सब भी सोसाइटी में एक अच्छा काम करें, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी आए या कुछ भी आए, पहला फर्ज तो हमारा बनता है सर, सेफ्टी रखना। Hi, I am Manish, founder and CEO Makes 360 Private Limited. So यहाँ we are at the best startup in ACIC Rise Association. So we got this award. I am thankful for this. We are a IT company जो basically हम IT की सारी चीज़ें बना रहे हैं. We are delivering services and softwares as a IT developers. So this was the thing, and I am very glad to attend this AI and Drone Expo event, and I am happy for this. अश्नीर ग्रोवर जी से आपको अवार्ड मिला है, कितनी खुशी है? या इट्स अचीवमेंट फॉर अस। अश्नीर जी से अवार्ड मिलना और उनसे जाके मिलना, 2 मिनट की बातें हुई, इट्स ऑल गुड, इट्स अ वर्थ इट कि इस एज में वी आर बिल्डिंग समथिंग। तो अच्छा लगता है कि हम इस एज में चीज़ें बना रहे हैं और ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। एंड बेस्ट थिंग इज़ कि अपने ही कॉलेज में मिल रहे हैं, सो इट्स बेटर फॉर अस कि बिना हासिल करे वी आर देयर। सो इट्स अ गुड सपोर्ट, इट्स एग्जाम्पल ऑफ वेरी गुड सपोर्ट। इंटरव्यू भी चल रहा था उनका, और क्या क्या सीखा? इट्स इनक्रेडिबल। वो पर्सन अपने आप, आई डोंट थिंक सो कि उनको किसी नेम टैग की ज़रूरत है। उन्होंने जो बिल्ड करा है लास्ट लेटर दैट ईयर, उन्होंने टैक्सेशंस के बारे में बताया, स्टार्टअप्स कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, वो चीज़ें बताया। इट्स ग्रेट। मतलब जस्ट फॉर 15 मिनट्स हमने वो करा कि चलो ठीक है यार, वेस्ट नहीं हुआ। आई एम वेरी हैप्पी कि आई वॉज देयर, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड वी गॉट अवार्ड। आई एम वेरी हैप्पी। सीजीसी लैंड्रा में आज जैसे ये इवेंट करवाया गया है, भारत AI एंड ड्रोन एक्सपो,
ऐसे होने चाहिए इवेंट CGC? बिल्कुल, इट्स अ पुश। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इतना बड़ा इवेंट हमने CGC में देखा है, एंड इट्स डेफिनेटली एक हमारे लिए बहुत अच्छा पुश है, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली स्टार्टअप इन CGC, राइट। हमारे जैसे यहाँ पे 20+ स्टार्टअप हैं जो डेली यहाँ पे काम करते हैं। दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर जॉब, दे आर लिविंग देयर करियर एंड दे आर बिल्डिंग दिस। तो अगर कॉलेज ही हमें एक लेवल पे सपोर्ट दे, इट्स वेरी गुड फॉर अस। हम यहीं से वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यहीं से वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स अगेन वेरी गुड, और ऐसी चीज़ें होती रहें तो हमें पुश मिलेगा डेफिनेटली। जो चीज़ हम 3-4 साल में अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनक्यूबेशन सेंटर, मे बी हम वो 6 मंथ में अचीव करें, और हमने करा है वो चीज़। आई एम हेयर फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, और जो एक्सेलरेट मैंने पिछले 4 साल में करी है, वही सेम चीज़ मैंने पिछले 1.5 ईयर में करी है। सो इट्स मोर गुड, डेफिनेटली होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। Hi, this is Diptansh, co-founder Makes 360 Private Limited, and we had got today the award. Means हमने आज हमें award मिला through ACIC RISE CGC लांडा से for the best entrepreneurs of the this event, है ना। नॉट ओनली इवेंट की मीन्स हम प्रीवियस काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे entrepreneurs रहे हैं in the field of IT, and even we are presently working on AGI. It means something general intelligence, you can say artificial general intelligence पे भी अभी काफ़ी कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी, काफ़ी बड़ा बिल्ड हो सकता है ये चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच टू ACIC RISE एंड CGC लांडा फॉर अकरिंग विद दोस ऑल इवेंट्स, है ना। थैंक आपका यू। क्या नाम है? तमन्ना। आपको भी अवार्ड मिला है, तो आपने किस चीज़ का स्टार्ट किया था? मैंने इनके साथ ही करा है। मैं 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, जी। और मैंने बहुत देखा है कि ये 1.5 साल में स्टार्टअप बहुत ग्रो हुआ है, और सबने बहुत इसके लिए मेहनत करी है। को-फाउंडर सबने बहुत अपने एफर्ट्स डाले हैं, दिन रात एक करके। अब भी रात को 9-9, 10-10 बजे तक सब ऑफिस में रहते हैं, सब काम करते हैं, अपना सब सेक्रीफाइस करते हैं, और ये श्योरली बहुत बड़ा बनेगा एक दिन, आई एम श्योर। नॉर्थ इंडिया में पहली बार CGC में ये एक्सपो हुआ है, ये इस इवेंट की शुरुआत हुई है, तो कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब ये सोचा नहीं था कभी कि अशनीर ग्रोवर आएंगे, वो भी CGC में। तो जैसे ही पता लगा कि टिकट्स मिल गया, हमने फटाफट जाके बुक किया। सबसे पहले स्टार्टअप समिट थे, हमने इवेंट के स्पॉन्सर भी किया है इस इवेंट को। जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। इवन दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट इवेंट जो प्रीवियसली इन CGC और यू कैन से इन नॉर्थ इंडिया में सबसे बेस्ट इवेंट, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड AI, एंड वन ऑफ द यू कैन से कि जो मोस्टली इंक्यूबेटेड एरियाज़ थे या स्पेशली बिजनेसेस थे, उनके लिए फर्स्ट इवेंट था ये, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो बाकी दिल्ली में तो हमने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किए हैं, बट नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम वी हैड एक्सपीरियंस इन CGC लांडा। थैंक यू सो मच CGC फॉर दिस।